ये हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसका टॉपिक है UAPA। हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल आया है जून 30, 2020 में कपिल सिब्बल का है, इसके बारे में हम अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में ये तैयार कर रहे हैं। When laws turn oppressive, there is an imbalance between the fundamental freedoms of citizens and interests of the state. Many of India's laws have become instruments of oppression rather than vehicles to regulate conduct. One such law is the Unlawful Activities Prevention Act 1967 UAPA. It is primarily meant to combat terror and proscribe non-terrorist organizations. Parliament, in the latest amendment to UAPA in July 2019, chose to proscribe individuals and their activities by paving the way to name individuals as terrorists. Even though they may have no affiliations with any of the 36 terrorist organizations referred to in the first schedule of the Act. Previously, this Act was passed in 1967. The government seeks to justify the amendment consistent with its alleged desire to effectively deal with terrorist organizations who threaten security. Unfortunately, the provisions of UAPA have, in the recent past, been used against those who foster the cause of civil rights and others who oppose the government and its पॉलिसीज़। जब कानून आमिराना बन जाएं तब बुनियादी आज़ादियों और रियासत के मफाद में अदम तवाज़ुन आ जाता है। भारत या इंडिया के बहुत से कानून आवाम को कुचलने का हथियार बन गए हैं। कम से कम लोगों की ज़िंदगी को सही सिमत देने की बजाय ये दूसरे ही काम करने लगे हैं। इसी तरह का एक कानून UAPA है, यानी गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोकने का कानून, जो 1967 में बना था। बुनियादी तौर पर यह दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बनाया गया था। जुलाई 2019 में इसमें एक बार फिर तरमीम की गई है मौजूदा गवर्नमेंट के ज़रिए या सरकार के ज़रिए। इनमें एक शख्स को इनफरादी तौर पर भी दहशतगर्द करार दिया जा सकता है, भले ही उसका ताल्लुक इन 36 तंजीमों में से किसी से भी ना हो, जिनको इस कानून की पहली फहरिस्त में शामिल किया गया है। मौजूदा सरकार ने इस बात को सही माना है, क्योंकि वो इसकी मदद से अमन के लिए ख़तरा किसी भी तंजीम को गैर कानूनी करार दे सकती है। अमली तौर पर क्या देखा गया है कि सरकार इसकी मदद से उन तंजीमों और अफराद को निशाना बनाती है जो अवाम के बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। वो अफराद जो सरकारी पॉलिसियों के मुखालिफ हैं और किसी मामले में सरकार के खिलाफ हैं। The Home Minister, when moving the amendment, justified naming an individual as a terrorist if he or she is a terrorist worker or takes part in any terrorist act. He also said that those who help to promote or prepare for terrorism should also be designated as terrorists, including individuals who raise money to promote terrorism. It is true that a person who, as a member of the terrorist organization,
carries forward its agenda by participating in a terrorist act must be dealt with in accordance with the provisions of UAPA। वज़ीर दाखिला ने जब इस बिल में तब्दीली के लिए पेश किया तो इस बात को सही या मुबनी बर इंसाफ करार दे रहे थे और कहा कि अगर कोई शख्स तकरीबी या दहशतगर्दाना कार्रवाई में हिस्सा लेता है तो उसका नाम लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा देते हैं या उनकी मदद पहुँचाते हैं इंफरादी या इज्तिमाई तौर पर, वो भी दहशतगर्द हैं। ये ठीक है कि अगर कोई शख्स जो किसी दहशतगर्द तंजीम का मेंबर है कोई ऐसा काम या कोई एजेंडा आगे बढ़ाता है और दहशतगर्दाना कार्रवाई में हिस्सा लेता है तो उसको UAPA के मुख्तलिफ कानूनी शिकों के तहत कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। However, we move into a somewhat grey zone when the state seeks to prosecute people by charging them with preparing for terrorism or promoting terrorism or raising money to promote terrorism unless a direct nexus is established between the act of preparation or promotion of the terrorist act itself and the activity of a terrorist organization. The act will be used and has been used to silence those who oppose the state for its discriminatory policies and actions. The Home Minister further said that there are others who attempt to plant terrorist literature and infiltrate young minds with terrorist theory. What kind of literature is terrorist literature? What theories influence young minds? And what kind of propaganda is perceived to be a terrorist act or concept ill-defined and easily misused? अब हम इस बिल के आगे के हिस्सों को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि दहशतगर्दी की तैयारी करना या इसमें मदद करना या इसके लिए फ़ंड इकट्ठा करना इससे पहले कि दहशतगर्द तंजीम से कोई बिलवास्ता ताल्लुक़ साबित किया जाए, यही काफ़ी है कि किसी की भी तैयारी करने में मदद करने या फ़ंड इकट्ठा करने के इल्ज़ाम लगाकर गिरफ़्तार किया जा सकता है और किया गया है। ये उन सभी अफराद को अपनी गिरफ्त में ले लेगा जो बिल या सरकार या सरकारी पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे हैं। इसके बाद वज़ीर दाखिला ये भी फरमाते हैं कि वो सभी अफराद जो दहशतगर्दाना अदब तैयार करते हैं, नौजवानों के दिमागों में डालते हैं, वो भी दहशतगर्दाना फ़िक्र है। सवाल ये है कि किस किस्म के अदब को दहशतगर्दाना करार दिया जाएगा और कौन सी नज़रियात या फ़िक्र को जो नौजवान दिमागों को मुतासिर करते हैं उनको प्रोपेगंडे को दहशतगर्द कहा जाएगा। कौन सी इस्तिलाह है कि हम किसको कहेंगे कि हाँ ये नज़रिया दहशतगर्दी का नज़रिया है और किसको कहेंगे ये नज़रिया दहशतगर्दी का नज़रिया या फ़िक्र नहीं है। ये सब बातें आसानी से किसी भी तरह किसी भी फ़र्द को दहशतगर्द बना सकती हैं। So far no individual has been named as a terrorist under UAPA, but many highly regarded leaders of the society, journalists, students who have opposed the Citizenship Amendment Act or CAA and who were perceived by the state to hold views contrary to that of the government are currently being investigated with intent to prosecute under UAPA। फ़िलहाल आज तक जब ये मज़मून लिखा जा रहा था 30 जून 2020 तक किसी भी शख्स को UAPA में या नामज़द नहीं किया गया था, मगर हालिया दिनों में
जिन लोगों ने CAA और NRC की मुखालफत में प्रोटेस्ट जारी रखा है, जो सरकार के नज़रियात और पॉलिसियों की मुखालफत में हैं या उससे मुख्तलिफ फ़िक्र के हामिल हैं, उनको हाल के दिनों में UAPA के तहत मुजरिम बनाया जा रहा है और जेलों की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। The data available with the National Crime Records Bureau report 2018 suggests that the conviction rate of those prosecuted under UAPA was as low as 14.5% in 2015 and as high as 49.3% in 2017. The total numbers of persons arrested in 2018 was 1,421. Other relevant data includes those charge sheeted 853, convicted 35, discharged 23, and acquitted 117. Clearly, the rate of conviction in 2018 was less than 30% of those convicted by the trial court. Several may well be acquitted by the appellate court, making the rate of conviction abysmally very low. जो आदाद शुमार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 के शाया किए हैं, उनके मुताबिक इकबाल जुर्म का तनासुब 14.5 है। 2015 में यह तादाद और फ़ीसद 14.5 और 2017 में इतनी ज़्यादा यानी 49.3 थी। 2018 में गिरफ्तार किए गए कुल अफराद की तादाद 1421 थी, जिनके खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किया गया। वो तादाद 853 थी जिनके खिलाफ जुर्म साबित हुआ, उनकी तादाद 35 थी। 23 को डिस्चार्ज और 117 को बरी किया गया। इसके बाद हम साफ तौर पर देखते हैं कि अफराद का फ़ीसद 35 से कम है। बहुत बड़ी तादाद अपीलेट अदालत से बरी हो सकती है और इस तरह इकबाल जुर्म और भी कम हो जाते हैं। दिस इज़ प्रूफ of the investigating authorities roping in named accused who are clearly not terrorists, making the law and procedures under it oppressive. Many of them are kept in custody for years before acquittal. An indication of law's indiscriminate misuse is reflected in the kind of people arrested under UAPA. Some disturbing examples among others are Akhil Gogoi, a RTI activist, Safura Zargar, a research scholar from JMI, Anand Taltumode and Gautam Navlakha, both of whom have done seminal work in protecting the Indians' most vulnerable communities, namely the Dalits and Adivasis. मसलन जहाँ a 26-year-old internationally acclaimed photojournalist Umar Khalid for allegedly instigating Delhi riots with his speeches at anti-CA rallies, and Gohar Gilani, a Kashmiri author and journalist, for his social media posts. इससे साफ तौर पर साबित होता है कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है वो वजह तौर पर दहशतगर्द नहीं हैं। इस तरह इस तब्दीली के तहत तरीक़ाकार और कानून दोनों ही आमिराना हो जाते हैं। इसमें से बहुत से लोगों को बरसों तक गैर कानूनी हिरासत में रखा जा सकता है। इसका इशारा इस बात से भी लगता है कि जो लोग ज़ेर हिरासत रखे गए हैं वो किस तरह के अफराद हैं। परेशान कुन मिसाल इसमें अखिल गोगोई, एक RTI कारकुन, सफूरा जरगर, एक रिसर्च स्कॉलर जामिया इस्लामिया से, आनंद तेल तमुंडे और गौतम नौलखा हैं। इन दोनों ने भारत के दलित बिरादरियों और आदिवासियों के हकूक़ की हिफाजत के लिए काम किए हैं। मुसर्रत ज़ोहरा 26 साला बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़ोटोग्राफ़र हैं। उमर खालिद JNU के स्टूडेंट रहे हैं, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने तहरी फसाद को भड़काया।
या गौहर गिलानी एक कश्मीरी मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं, उसकी समाजी मीडिया पर डाली गई पोस्ट के लिए उनको लिया उन पर नज़र रखी जा रही है। The reason why naming individuals is oppressive and violates citizens' fundamental freedoms is because of the onerous provisions relating to bail. First, those being investigated can be kept in custody for 180 days, pending filing of the charge sheet. Bail is refused if the court, on perusal of the case diary or upon filing of a charge sheet, is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusations against the person are prima facie true. It is the settled position in law that the accused cannot have access to the case diary. As far as the charge sheet is concerned, the act of taking cognizance by the court is based on a prima facie belief that the accusations are true. At that stage, the accused is not heard by the court. This makes the law onerous and offensive, with no hope for the accused to access bail. Trials too take long. At the end of 2018, of the 2008 cases, only 317 were sent to trial. Given the state of the law, an acquittal at the end of the trial means little. जिस वजह से इस कानून को आमराना कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि न सिर्फ ये शहरियों की बुनियादी आज़ादी को ख़त्म कर देता है, बल्कि इसलिए भी कि इसके तहत 180 दिनों तक किसी फ़र्द को बगैर ज़मानत दिए कैद में रखा जा सकता है। इसकी ज़मानत भी नहीं दी जा सकती है। अगर अदालत ये समझती है कि चार्ज शीट में जो कुछ कहा गया है वो सच है, ये एक तस्लीम शुदा कानूनी पोजीशन है कि अगर ऐसा है तो मुलजिम को केस डायरी की पहुंच से बाहर रखा जाएगा। जहाँ तक चार्ज शीट का ताल्लुक़ है, अदालत प्राइमा फेसी यकीन करती है कि इल्ज़ामात सच हैं तो इस पर कोई कार्रवाई न होगी। इस हालत में मुलजिम को अदालत में सुनवाई का मौका भी नहीं मिलेगा। इस तरह से कानून एकतरफ़ा और हमलावर की तरह सलूक करता है। तब मुलजिम को ज़मानत की कोई सूरत बाकी नहीं रहती है। 2018 के आखिर में 2008 मामलात में सिर्फ 317 को ट्रायल यानी पेशी तक पहुंचने की सहूलत मिली। कानून और अदालत का जो रवैया और हालत है उससे ट्रायल में किसी मुलजिम को बरी होने की उम्मीद बहुत कम है। The imbalance between fundamental freedoms and the largest interest of the state is heavily skewed against the citizens. The state uses the law as an instrument of oppression, making democracy its victim. ये जो गैर मुतवाज़िन सूरत हाल है वो बुनियादी आज़ादी और रियासत के मफाद के दरमियान शहरियों के ख़िलाफ़ ही तैयार की गई है। सरकार या रियासत कानून को जबर के तौर पर इस्तेमाल करता है और उससे जमहूरियत और जमहूरी इक़दार पर बुरी तरह चोट पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच।